की मात्रा सु, द में री की मात्रा द्री, ढ़ सुदृढ़. ओके, सुदृढ़. सुदृढ़ मीन्स शरीर. Vishal means huge, means very heavy personality. Did you see the Sardar Vallabhbhai Patel photo? He is very heavy personality. Yes, Yes, that ma'am. is means विशाल शरीर. शरीर means body. बहुत ही मतलब Okay, उनकी ma'am. बॉडी जो है बहुत हाइट, means very height and weight. Okay, that's why people are called the Lauh Purush, Iron Man. Yes, he famous in India, in all the world, uh, Iron Man. Okay, he is not operating other any other leaders, any foreigners. He did not afraid. He is very courageous man. That's why the people given the pet name the Lauh Purush. Lauh means iron, Purush means man. Iron Man. Yes. Any other doubt, children? This lesson, section 7B and AA, already they are asking the doubt. What about 7B? You have any doubt, children? Shall I start the classwork? Yes, ma'am. Okay. So today we are going to learn classwork. Sardar Vallabhbhai Patel. Yes, I'm going to present, children. Please, all of you, listen carefully. Any doubt, you note it down your rough note. We will discuss later, okay? But in between, don't disturb the class always. Yes. One minute. I'm going to do the landscape, children. 1 minute. Hello, Pranita ma'am. Ma'am. जय गुरुदेव मैम. स्क्रीन दिख रही है? हाँ, दिख रही है. ओके. पाठ 10, लेसन नंबर 10, सरदार वल्लभ भाई पटेल. हिंदी में अर्थ लिखिए. उत्साह. उत्साह को हिंदी में बोलेंगे उमंग. उत्साह, उमंग. इंग्लिश में क्या है इसका मीनिंग्स? एक्साइटमेंट. बट आप लोग इसको इंग्लिश केवल पढ़िए कि उत्साह को क्या कहते हैं, लेकिन आपको हिंदी में हिंदी अर्थ लिखना है. लास्ट असेसमेंट, सॉरी, हाफ ईयरली एग्जाम, बहुत बच्चों ने इंग्लिश में मीनिंग लिख दिया था. इंग्लिश मीनिंग इज रॉन्ग, चिल्ड्रन. इंग्लिश मीनिंग ओनली फॉर योर रेफरेंस. आप अच्छी तरह से समझ जाइए इसका क्या मीनिंग है, इसलिए हम लोग इंग्लिश में बताते हैं, लेकिन आपको लिखना है हिंदी में. यस चिल्ड्रन. उत्साह. उत्साह मीन्स उमंग, एक्साइटमेंट. योद्धा. धा, सी हियर चिल्ड्रन, हाफ ध. दा के नीचे देखिए हाफ ध, बॉटम ऑफ द लेटर हाफ ध. So we called Yodha. Yodha means veer, daring, warrior. Anyone you can read. Daring person or warrior. Yodha. Okay. Vichar. Vichar means soch, thinking. What is the thinking about other person? And आपकी पर्सनल थिंकिंग क्या है? तो थिंक को क्या बोलते? थिंकिंग को विचार, सोच. अभिमानी. अभिमानी. अभिमानी मीन्स घमंडी, प्राउड. प्राउड, अभिमानी जिसको बहुत ही प्राउड होता है वो अभिमानी उनको बोलते हैं. छाप. नंबर 6. नंबर 5, छाप. छाप मीन्स असर. छाप मीन्स असर. इम्पैक्ट या इम्प्रेशन. यस, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको. छाप को इम्पैक्ट, क्या छाप छोड़ा हमारे ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने.
क्या उनका इम्प्रेशन क्या था पीपल के ऊपर, जो लोग थे इंडिया के, उनके ऊपर उनका क्या इम्प्रेशन था, क्या इम्पैक्ट किया, क्या छाप छोड़ी, क्या असर था उनकी पर्सनालिटी का लोगों के ऊपर। तो इसलिए छाप का अर्थ होता है असर, इम्पैक्ट या इम्प्रेशन। ख्याति, ख्याति मीन्स कीर्ति, आप इसको रेपुटेशन भी कह सकते हैं या फेम भी कह सकते हैं। यस, एक बार फिर से देखिए सारे मीनिंग्स हिंदी में ही अर्थ पहले आप पढ़ने का ट्राई कीजिए। उत्साह, उमंग, एक्साइटमेंट, उत्साह, उमंग, एक्साइटमेंट, योद्धा, वीर, डेयरिंग या वॉरियर, विचार, सोच, थिंकिंग, अभिमानी, घमंडी, प्राउड, छाप, असर, इम्पैक्ट, इम्प्रेशन, ख्याति, कीर्ति, रेपुटेशन या फेम। यस, एनी डाउट चिल्ड्रन? Ma'am, I have a doubt, ma'am. I have a doubt, ma'am. Yes. Ma'am, I could not understand the meaning of chop and kyati, ma'am. छाप, छाप means impact, impact या impression. Yes. For example, you are coming to school and you have your all teacher are teaching you, right? All subject teacher teaching you, but any one particular teacher का impact आपके ऊपर आता है, impression, she is teaching very good, ना? Yes or no? Yes. Yes. So that is the impact of the teacher. That is impact of the teacher. Yes, that ma'am teaching very good and I understood very easily that formula, that question answer, everything is. So she is teaching very good, and that time the teacher will come in class. So you feel very relaxed. Yes, that ma'am came. Now we will read the very good. That is the असर. असर क्या होता है उनका, उनका असर, उनका एक तरह से आप इसको समझ लीजिए क्या इफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर। व्हाट इज द इफेक्ट? छाप को असर, इम्पैक्ट, इफेक्ट, प्रभाव जिसको बोलते हैं, इम्प्रेशन। यस, so Yes, Abdul ma'am. Dr. Yes, Dr. ma'am. Abdul Kalam, you know Dr. Abdul Kalam. So we are remembering always Dr. Abdul Kalam. We are given some example. So why? Because he a very impression person. He gave to very knowledge to us. Yes. Yes, इसी ma'am. को कहते हैं Yes, ma'am. असर। उनका क्या असर था, क्या उनका इम्पैक्ट था, इसलिए उनको सब याद करते हैं इसलिए। और ख्याति, ख्याति में कीर्ति, फेमस हो जाना, फेम। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में वो बहुत फेमस थे, प्रसिद्ध जिसको बोलते हैं। तो उनकी बहुत ही हाई रेपुटेशन थी, एवरीवन गिवन टू रेस्पेक्ट, दैट इज ख्याति। यस, फेम। Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Understood, ma'am. Understood, ma'am. Okay, very good. Anyone has other children? You have any doubt about this Hindi meanings? Ma'am, chat box में अगर children you write your in your answer chat box. Don't unmute anyone. Okay. So come to the विलोम शब्द, opposite word children. Opposite word क्या है यहाँ पे देखिए। उचित, उचित means correct, right. अनुचित मीन्स इनकरेक्ट या रॉन्ग। उचित, अनुचित, उचित, अनुचित। और कई बार आपने पढ़ा है एट द बिगिनिंग, यू लर्न वेरी टाइम। उचित, अनुचित, यह कार्य उचित है, दिस इज गुड वर्क, यह अच्छा करेक्ट है। अनुचित मतलब ये कि रॉन्ग है, ये अनुचित नहीं है। कोई भी काम आप करने जाते हो, यू आर गोइंग टू डू सम वर्क, नो दिस इज गुड और बैड, फर्स्ट वी आर थिंकिंग। सो उचित, अनुचित। यस, एंड उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण मीन्स पास, प्रमोशन। अनुत्तीर्ण मीन्स डिमोशन, फेल। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उसको पास फेल भी कहते हैं या प्रमोशन डिमोशन भी कहते हैं।
उत्साह निरुत्साह, उत्साह निरुत्साह। उत्साह मीन्स एक्साइटमेंट जैसे मैंने बोला, और निरुत्साह मीन्स अनएक्साइटमेंट, कोई उत्साह, कोई अंदर एक्साइटमेंट नहीं होता है। मृत्यु जन्म, डेथ बर्थ। स्वाधीनता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वाधीनता? मेनी टाइम यू लर्न ऑलरेडी स्वाधीनता। स्वाधीनता का क्या मतलब होता है? फ्रीडम। यस, स्वाधीनता का मतलब होता है फ्रीडम, स्वतंत्र होना, इंडिपेंडेंट। और पराधीनता मीन्स अंडर अदर। तो हमारा इंडिया जो है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर डिपेंड था? पराधीन था। पराधीन मीन्स डिपेंड था। किसके ऊपर डिपेंड था? किसके पोजीशन में था? फॉरनर के पोजीशन में था। वो पराधीन था। तो उसको स्वाधीन कराने के लिए ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही काम किया। इंडिया को आजाद कराने के लिए, इंडिपेंडेंट कराने के लिए बहुत ही उन्होंने काम किया। तो स्वाधीनता का पराधीनता। और विदेश स्वदेश, विदेश मीन्स फॉरेन, स्वदेश मीन्स आर सेल्फ कंट्री। स्वदेश, स्व मीन्स सेल्फ, कंट्री मीन्स देश, स्वदेश। विदेश मीन्स फॉरेन। एनी डाउट चिल्ड्रन? विलोम शब्द में आपको कोई डाउट है? मैम विलोम शब्द बोथ है। फोर्थ, मृत्यु जन्म। यस, मृत्यु, मृत्यु मीन्स डेथ, जन्म मीन्स बर्थ। डेथ का अपोजिट क्या होता है? बर्थ। बर्थ का अपोजिट डेथ। ओके मैम व्हाट इज फॉरेन, विदेश। अमेरिका, पाकिस्तान, फ्रांस, जर्मनी, रूस, इटली, दिस इज ए विदेश। स्वदेश, स्वदेश और इंडिया। वॉइस इज ब्रेकिंग डियर। विलोम शब्द लिखिए। उचित, मैम अनुचित। यस मैम थर्ड वन कैन वी राइट इट आल्सो एज उत्साह also correct मैम। अनुसा also correct. Anusa also correct. Okay, ma'am. Yes. Anusa is also a right answer. Okay. In your book have Nirutsa, so I am teaching you Nirutsa because children are reading only what the type in the book. But Anutsa also correct answer. Okay. Ma'am, what is mean by Yes. Ma'am, what is mean by uchit? उचित मीन्स करेक्ट, राइट। क्या उचित है? आप कोई काम करते हो तो ये उचित काम है, ये अनुचित है ना। किसी से प्यार से बात करना उचित है और किसी से लड़ाई करना ये अनुचित है, सही नहीं है ना। सही गलत हम बोलते हैं ना, ट्रू फॉल्स, सही गलत, करेक्ट इनकरेक्ट, राइट रॉन्ग, उसी को अनुचित और या उचित बोलते हैं। ठीक है। एनी अदर डाउट चिल्ड्रन? Hello, am I audible children? Yes, ma'am. No doubts, ma'am. Okay. तो जोड़े बनाइए। जोड़े बनाइए मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जोड़े बनाइए? Match the following. Okay. मैच दी फॉलोइंग में मैंने बार बार आपको कहा है, अगेन एंड अगेन आई टोल्ड चिल्ड्रन, डोंट राइट द नंबर्स 1B 1C, दिस इज रॉन्ग वे, अनुचित है। फिर भी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, ये उचित नहीं है। आपको जब पेपर में आए जोड़े बनाइए, दैट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, यू शुड राइट द फुल क्वेश्चन, यू फर्स्ट कॉपी द क्वेश्चन, then you write the answer, you put the number that side of the answer, otherwise you put one line cross. But बच्चों ने क्या लिखा? एक 1C 1B, no, this is not. This time if you will write like this, I will cut, I will give the 0 mark. Again I told, some children wrote the very good method, everyone, and some 4 or 5 children are wrote the, what is this 1C 1B, how I can understand?
यू राइट द फर्स्ट, जोड़े बनाइए का मेथड करेक्ट मेथड है। आप पहले क्वेश्चन आंसर दोनों लिखिए, उसके बाद आप उसको मैच करिए। फर्स्ट यू राइट फुल क्वेश्चन, कॉपी इन योर आंसर स्क्रिप्ट, आफ्टर यू डू द मैच बाय लाइन, अदरवाइज बाय नंबर्स। यस, जोड़े बनाइए। यहाँ पे देखिए, खेड़ा, खेड़ा जिला गुजरात, खेड़ा जिला कहाँ है? गुजरात में है। पटेल के पिता का क्या नाम था? झबेर पटेल। यस, झबेर भाई पटेल, उनको क्या बोलते थे? झबेर भाई पटेल। पटेल का जन्म कब हुआ था? पटेल का जन्म 1875, 1875 में उनका जन्म हुआ था। स्वाधीनता संग्राम, स्वाधीनता संग्राम 1857, स्वाधीनता संग्राम कब हुआ था? 1857 में हुआ था। झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह का मैच क्या है कि सेनापति का गौरव, गौरव मीन्स प्रेस्टीज, प्राइड, प्राइड ऑफ द लीडर। सेनापति जो होते, जो सेना का लीडर होता है, उनको सेनापति बोलते हैं। तो झंडा सत्याग्रह सेनापति का गौरव था। वाक्य में प्रयोग कीजिए, वाक्य में प्रयोग में, यस Ma'am, what is Kheda, ma'am? Kheda, ma'am. खेड़ा इज एन प्लेस नेम इन गुजरात, स्टेट ऑफ द गुजरात, गुजरात स्टेट, ओके, गुजरात एक स्टेट का नाम है। जैसे तमिलनाडु स्टेट है, तमिलनाडु में चेन्नई, यस, ऐसे ही गुजरात, गुजरात दिस सॉरी स्टेट, एंड स्टेट इनसाइड द खेड़ा वन डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट द खेड़ा, हियर डिस्ट्रिक्ट द कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, like this district have na in Tamil Nadu. So खेड़ा is a district of the Gujarat state. Okay, खेड़ा का कोई मीनिंग नहीं, खेड़ा इज ए प्लेस नेम। ओके, एनी अदर डाउट? मैच द फॉलोइंग चिल्ड्रन। खेड़ा जिला का नाम है, जिला मीन्स डिस्ट्रिक्ट, वो गुजरात के स्टेट में है, गुजरात प्रदेश में खेड़ा जिला है। यस, एनी अदर डाउट चिल्ड्रन? No, किसी ma'am. को? No, ma'am. ओके, सो वाक्य में प्रयोग कीजिए, फ्रेम द सेंटेंस। वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है सर्वथा, सर्वथा मीन्स ऑलवेज, हमेशा। इसमें क्या हम लिख सकते हैं? वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व अन्य नेताओं से सर्वथा अलग था। व्यक्तित्व मीन्स पर्सनैलिटी। तो वल्लभ भाई का जो पर्सनैलिटी थी, व्यक्तित्व था, वो अन्य नेताओं, जो अदर्स लीडर्स थे, उनसे अलग था। ही इज लिविंग द सेपरेट, ही इज लुकिंग द सेपरेट, पर्सनालिटी इज सेपरेट बिकॉज इज वेरी हाइट एंड वेट। तो वो अन्य नेताओं से सर्वथा अलग था। व्याकुल, व्याकुल मीन्स सफोकेशन। ओके, किसानों की गरीबी देखकर पटेल का मन व्याकुल हो जाता था। बिकॉज किसान, किसान इज ए फार्मर, farmer is doing very hard work, but farmer, why the farmer is poor, is thinking always why farmer is poor, he is doing the hard work, and we are also survive on the earth behalf of the farmer, farmer के ही द्वारा हम इस धरती पर हैं, बिकॉज वो हमें ग्रेन्स देते हैं, वेजिटेबल्स वी आर अर्निंग देयर, सो व्हाई farmer is poor. So this is thinking, inside thinking always वल्लभ भाई पटेल, एंड उनका मन जो था, उनका माइंड, उनका हार्ट ऑलवेज ये थिंक करता था, व्याकुल रहता था। कुछ करने के लिए वो चाहते थे कि किसान को मैं कुछ करूं, आई कैन डू समथिंग फॉर द फार्मर्स, जिससे उनका लेवल वो हाई लेवल हो जाए। यस, नेक्स्ट इज विरुद्ध, विरुद्ध मीन्स अगेंस्ट। वल्लभ भाई पटेल 1857 के स्वाधीनता संग्राम में बुंदेलों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। वल्लभ भाई पटेल जो है
उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में, फ्रीडम फाइटिंग में, जो संग्राम मीन्स आल्सो फाइटिंग, युद्ध, वार, बुंदेल जो थे उनके साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध, अगेंस्ट ऑफ द ब्रिटिश, उन्होंने भी फाइट किया था। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मीन्स पास। सन 1900 में मुख्तारों की परीक्षा में पटेल उत्तीर्ण हो गए। मुख्तारी की परीक्षा, जो उन्होंने मुख्तारी की परीक्षा दी थी, टाइप्स ऑफ ए बैरिस्टर, वो पास हो गए। ख्याति, ख्याति मीन्स फेम, रेपुटेशन। फौजदारी के मुकदमों में, फौजदारी मीन्स क्रिमिनल, क्राइम केस, क्रिमिनल केस जो रहते थे, फौजदारी मीन्स क्रिमिनल केसेस, उनकी वजह से वल्लभ भाई पटेल की ख्याति बढ़ गई। रीजन ऑफ द criminal case, he is handling the criminal case, that's why he is very famous all world. Okay, any doubt? this वाक्यों में प्रयोग कीजिए, frame the sentences. Any doubt children? You can Ma'am, make can you explain first one alone, ma'am? 1 minute. What I am telling children, if you know the frame the sentence, you can make your own sentence. Okay, that is also correct. Okay, ma'am. जैसे कि सर्वथा, सर्वथा मीन्स ऑलवेज, आप लिख सकते हो मैं सर्वथा अपना गृह कार्य कर लेता हूँ, मैं सर्वथा अपने माता पिता का आदर करता हूँ ना। तो ये सब सेंटेंस आप लिख सकते हो, कोई भी सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हो, अपना ओन सेंटेंस। तो सर्वथा मीन्स ऑलवेज। वल्लभ भाई का व्यक्तित्व, व्यक्तित्व मीन्स पर्सनालिटी, आई टोल्ड अगेन चिल्ड्रन, व्यक्तित्व मीन्स पर्सनालिटी। अन्य नेताओं से, अन्य नेताओं मीन्स जो अदर लीडर्स थे, अदर्स लीडर्स, तो ही इज ऑलवेज सेपरेट, अलग रहते थे। his personality is very separate, different other peoples. Yes, any other doubt children? Any other doubt is frame the sentences children, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। No, ma'am. No, ma'am. Okay, let's go to question answer. Answer the following. अच्छा, आपने कहानी पढ़ी है वल्लभ भाई पटेल का जीवन परिचय, मैंने आपको पढ़ाया, तो उसमें था कि उनकी पत्नी मीन्स वाइफ इज सिक। तो वल्लभ भाई की पत्नी कहाँ बीमार पड़ी, कहाँ मीन्स वेयर, विच प्लेस। आंसर है वल्लभ भाई की पत्नी गोधरा में बीमार पड़ी। खेड़ा, यू नो, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, दैट इज द गोधरा। गोधरा इज ए स्टेशन, वन स्टेशन है गोधरा। गोधरा कांड इज वेरी फेमस है, गोधरा इन गुजरात। सो ही सिक इन गोधरा, गोधरा जो है वो प्लेस नेम है। ओके, गोधरा में बीमार पड़ी। सेकेंड क्वेश्चन है वल्लभ भाई ने अपनी पत्नी को ऑपरेशन करने के लिए कहाँ दाखिल किया। फॉर द ऑपरेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल वेयर इज एडमिट हिज वाइफ। दाखिल मीन्स एडमिट करना, कहाँ पे उन्होंने एडमिट किया था, किसी को मालूम है कहाँ पे एडमिट किया था उनको? विच हॉस्पिटल? मुंबई की अस्पताल। हाँ, यस, वेरी गुड। वल्लभ भाई पटेल ने अपनी पत्नी को ऑपरेशन के लिए मुंबई के अस्पताल में दाखिल किया। अस्पताल मीन्स हॉस्पिटल, तो मुंबई हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट कर दिया। यस, दाखिल किया मीन्स एडमिट किया। पटेल ने अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार कब दूसरों को सुनाया? When he given this information to others, my wife is died. पटेल ने अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार मुकदमा खत्म होने के बाद दूसरों को सुनाया। मुकदमा, मुकदमा मीन्स केस, he is fighting on case.
his discussion going on there, argument going on there. That time he got one message, your wife is died, she is admitted in the Mumbai hospital, but he did not say other people. After that case is over, then he given this information, this message to others, my wife is died. Okay. Any other doubt, children? Any doubt about answer the following? किसी को कोई डाउट है बच्चों? किसी को कोई डाउट है? स्टार्टिंग से लेके एंड तक किसी को कोई डाउट है? ओके मैम, थोड़ा नाम बुलाइए पढ़ने के लिए बच्चों को. Somebody is asking doubt. Yeah, tell me, unmute and say what's your doubt. Harini, have any doubt? Have any doubt? Ma'am. Yes. No, ma'am, I said I don't have doubt. Oh, okay. That day you absented. That day I taught this lesson, right? Yes, ma'am. Okay. So, others, anyone have doubt? Ma'am, can you just give a recap, ma'am? Yeah, sure. I will give the recap. One Okay, minute. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, dear. No problem. Okay, children, I'm going to give the one recap because some children told I'm absent that day. Yes? Yes, children. So I'm going to share the PPT, Sardar Vallabhbhai Patel lesson. Shortly, I will say you Harini. Other will also listen because we have no time to explain more. 1 minute. Don't disturb the screen, children. Don't disturb the screen, please. Ma'am, next to what lesson, ma'am? Next lesson, I will teach you Monday. Next lesson is Kahani Prayashchit. Okay, the story have na Prayashchit. स्क्रीन दिख रही है प्रणीता मैम? स्क्रीन दिख रही है? आ गई. ओके. यस. सरदार वल्लभ भाई पटेल सुदृढ़ एवं विशाल शरीर, कठोर मुख मुद्रा और शत्रु के प्रति ललकार भरी आंखें, ऐसे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल. सो ही इज वेरी स्ट्रांग एंड ह्यूज बॉडी. विशाल मीन्स बिग, बड़ा मीन्स बिग, विशाल मीन्स वेरी ह्यूज, हैवी पर्सनालिटी. और कठोर मुख मुद्रा, फेस एक्सप्रेशन इज आल्सो वेरी स्ट्रांग एंड ऑलवेज ही गिवन टू चैलेंज द एनिमीज. कौन हमारे दुश्मन है उनको चैलेंज करते थे, कैसे? अपनी आंखों से. आंखें मीन्स आईज. तो दैट इज ए क्वालिटी ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल. उनके सीने में तूफान की शक्ति थी. सीने मीन्स चेस्ट, अंदर, हार्ट में उनके तूफान की शक्ति थी. तूफान मीन्स साइक्लोन कमिंग ना, स्ट्रॉन्ग साइक्लोन, ऐसी ही पावर थी उनके अंदर. और भुजाओं में उत्साह की फड़कन. भुजाओं मीन्स आर्म्स. ऑलवेज ही हैव एक्साइटमेंट अबाउट और इंडिया. वे खतरे से डरते नहीं थे. खतरा मीन्स डेंजर. कोई भी डेंजर सिचुएशन आती थी, वो उनको डर नहीं लगता था. वो फेयर नहीं होते थे हमेशा. ऑलवेज करेजियस पर्सन थे वे.
उनमें अद्भुत संगठन शक्ति थी, अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन पावर थी उनके अंदर। वे अपने बारे में मौन रहते थे। ही ऑलवेज साइलेंट अबाउट हिमसेल्फ। उनका व्यक्तित्व अन्य नेताओं से सर्वथा अलग था। आई टोल्ड नाउ द फेम द सेंटेंसेस, हिज पर्सनालिटी इज ऑलवेज सेपरेट द अदर लीडर्स। वे अवसर का उचित उपयोग करना जानते थे। अवसर मीन्स चांस, एनी चांस, if he will get any chance, so he used always good use, not wastes our time. वीरता उनकी आराध्य देवी थी। वीरता मीन्स ब्रेवनेस, ब्रेवनेस ही इज ऑलवेज प्रेइंग द गॉड ऑफ ब्रेवनेस, गॉड ऑफ ब्रेवरी। वे सच्चे अर्थों में ऐसे योद्धा थे, झुकना नहीं जानते। ही कैन नॉट बेंड आवर बॉडी टू फ्रंट ऑफ द इनेमीज। अंग्रेजों के प्रति वो कभी झुकते नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऊपर से जितने रूखे, निष्ठुर और अभिमानी से प्रतीत होते थे, भीतर से उतने ही सरल और कोमल के हृदय थे। ऊपर से, ऊपर मीन्स एक्सटर्नल, ऊपर से, आउटसाइड, if you see the Sardar Vallabh Bhai Patel, he will look the very strong, very cruel type, and he is looking very proudy, but inside he is very easy person, very soft heart. उनके हृदय में ममता और प्यार हिलोरे मारती थी। इनसाइड द वेरी काइंडनेस, ममता, ममता मीन्स काइंडनेस और प्यार, लविंग पर्सन थे। किसानों की गरीबी को देखकर उनका हृदय व्याकुल होता। अबाउट द फार्मर्स ही इज वेरी थिंकिंग एनी टाइम व्हाट आई विल डू द फॉर द फार्मर्स, ही विल इम्प्रूव हिमसेल्फ। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875, अक्टूबर 31, 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले के करमसद नामक गांव में हुआ था। करमसद नामक गांव, गांव मीन्स विलेज, सो विलेज नेम इज करमसद, डिस्ट्रिक्ट नेम इज खेड़ा एंड स्टेट नेम इज गुजरात। उनके पिता श्री झबेर भाई पटेल थे। हिज फादर इज झबेर भाई पटेल, आल्सो फार्मर, कृषक थे। कृषक मीन्स किसान। उन्होंने 1857 के स्वाधीनता संग्राम में बुंदेलों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। बुंदेलों के साथ मिलकर उन्होंने भी फ्रीडम फाइट किया था, अंग्रेजों से उन्होंने लड़ाई किया था। वल्लभ भाई के ऊपर के पिता देश प्रेम और वीरता की छाप पड़ी। उनके पिता भी झबेर भाई पटेल भी, ही इज आल्सो द फ्रीडम फाइटर, तो इसलिए उनका इम्पैक्ट, उनका इम्प्रेशन जो है वो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर भी आ गया। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वल्लभ भाई की इच्छा उच्च शिक्षा प्राप्त करने की हुई। उच्च शिक्षा मीन्स हाई लेवल एजुकेशन, बट economical problem he cannot do like this, then he lived this thought, I will not take the high education। और मुख्तारी की परीक्षा उत्तीर्ण कर गोधरा में फौजदारी के मुकदमों की प्रैक्टिस करने लगी। मुख्तारी मीन्स बैरिस्टर, वकील, एडवोकेट, उर्दू में बोलते हैं मुख्तारी। तो आफ्टर द ही इज कंप्लीटेड द मुख्तारी की परीक्षा, बैरिस्टरी की परीक्षा, एग्जामिनेशन, एंड ही स्टार्टेड द क्राइम केसेस इन गोधरा। शीघ्र ही उन्हें बहुत ख्याति मिल गई। वेरी सून ही फेमस। उन्हीं दिनों उनकी पत्नी बीमार हो गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन के लिए उन्हें मुंबई में दाखिल किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल एडमिट इन मुंबई हॉस्पिटल इज वाइफ। एक दिन जब वे अदालत में फौजदारी के मुकदमे की पैरवी में व्यस्त थे, तभी उन्हें एक तार मिला। वन डे ही इज doing the practice one criminal case, that time he got one message, what is the message, your wife is died, but he cannot say any other people, वो किसी से बोल नहीं सके। पूरा मुकदमा फिनिश होने के बाद, full case is final, over argument is final, then after he told to other person, my wife is died, and whole life he did not do the again marriage, remarriage, he did not do the remarriage। ओके, उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया।
वल्लभ भाई विलायत जाकर, विलायत मीन्स फॉरेन जाकर बैरिस्टरी की परीक्षा पास करने की इच्छा सजोए हुए थे। इसके लिए वे कुछ रुपए जमा करने लगे थे। एक विदेशी कंपनी से पत्र व्यवहार कर रहे थे। विदेशी कंपनी मीन्स फॉरेन कंपनी से वो पत्र व्यवहार मीन्स वहां पे पत्र व्यवहार का मतलब होता है कि वो लोग कुछ भेजते हैं, ये वो टाइप करके हमें देना पड़ता है। ओके, सो ही इज डूइंग दिस वर्क, ऑनलाइन वर्क। द टाइम पत्र व्यवहार करते थे मीन्स वो आपस में उनसे कन्वर्सेशन करते थे, लेटर बाय लेटर। तो इसलिए उनको कुछ पैसे मिलते थे और उन पैसों को उन्होंने सेव किया और बैरिस्टरी की परीक्षा पास करी। महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह का भार वल्लभ भाई के कंधों पर डाला। खेड़ा सत्याग्रह जब स्टार्ट हुआ तो ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी केम ऑन द सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने गुजरात के गांव-गांव में पैदल घूमकर गांधी जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। जन जन मीन्स वन पीपल। He given this message to all of you also come and join the खेड़ा सत्याग्रह। उन्हें उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। दिशा मीन्स डायरेक्शन। He is changed fully life। खेड़ा सत्याग्रह की सफलता का सारा श्रेय वल्लभ भाई पटेल को जाता है। नागपुर का झंडा सत्याग्रह भी वल्लभ भाई पटेल की कर्मठता का ज्वलंत प्रमाण है। प्रमाण मीन्स एविडेंट, ज्वलंत मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस। झंडा सत्याग्रह कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? नागपुर में, और वल्लभ भाई पटेल के ही नेतृत्व में ये स्टार्ट हुआ था। इस सत्याग्रह की सफलता से इसी सत्याग्रह ने उन्हें सेनापति का गौरव प्रदान किया, सेनापति बनाया उन्हें यह गौरव या प्रेस्टीज मिली, उन्हें यह प्राइज प्रदान हुआ कि वो सेनापति बन गए। और उनके जिन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, ही गिवन टू सम स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट था? कि शत्रु का लोहा भले ही गर्म हो पर हथौड़ा ठंडा ही काम दे सकता है। उनका लोहा गर्म है, मतलब दिस इज द गुड टाइम, सो वी हैव टू अटैक द ब्रिटिश फॉरनर। वल्लभ भाई पटेल को सबसे अधिक प्रसिद्धि बारडोली के सत्याग्रह में हुई। बारडोली द प्लेस नेम। तो इस सत्याग्रह में उन्हें वो सबसे ज्यादा फेमस हुए और सत्याग्रह की सफलता से समस्त देश के सरदार बन गए। सरदार, लीडर, हेड वो बन गए। सत्याग्रह में उन्होंने किसानों को प्रेरणा देते हुए कहा था, आप तो किसान हैं, किसान कभी दूसरे की ओर हाथ नहीं पसारता। यू कैन नॉट टेक एनी थिंग्स, फार्मर कैन नॉट टेक एनी थिंग्स टू अदर पर्सन, ही ऑलवेज गिविंग। हमेशा देता है, लेता नहीं है। आप सब मेरे हैं तो डर किसका? किसी से डरे नहीं। डोंट अफ्रेड एनीवन। अपनी प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिष्ठा मीन्स ऑल्सो रेपुटेशन, अपनी प्रसिद्धि, अपनी ख्याति, अपनी कीर्ति, अपने रेस्पेक्ट के लिए आप सबसे फाइट कीजिए। अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने पर वो स्वाधीन भारत के उप प्रधानमंत्री बने, वाइस प्राइम मिनिस्टर। ही अपॉइंट वाइस प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त 1947। And who is the prime minister that time, children? You know? स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? Who is the first prime minister? जवाहरलाल नेहरू, that time first prime minister of India, and Sardar Vallabhbhai Patel is वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्हें गृह विभाग, रियासती विभाग सौंपे गए, उन्हें होम मिनिस्ट्री सौंपी गई और रियासती विभाग में जो उनका स्टेट होता है, रियल स्टेट, वो सौंपा गया, उनको हैंड ओवर कर दिया गया। और उन्होंने इंटीग्रेशन किया, 600 रियासतों का इंटीग्रेशन किया, एकीकरण कर दिया, उनको मिला दिया। पहले वो सेपरेट थे। और हैदराबाद के निजाम में इसमें कुछ आनाकानी की तो उन्होंने पुलिस कार्रवाई कर दी। पुलिस कार्रवाई में पुलिस केस कर दिया। 3 डेज में ही दैट निजाम की सत्ता का अंत हो गया। जो निजाम थी, जो वहां का वो बहुत ही शासन करता था, उसका रूल्स था, उसका एंड हो गया। कार्य कितना कठिन था, दैट वर्क इज वेरी हार्ड, बट सरदार वल्लभ पटेल ने उसको इजी वे में समाप्त कर दिया। स्वतंत्रता का यह महान योद्धा
मतलब सितंबर 15 1950 को हमसे विदा हो गया। मीन्स ही डाइड 15 सितंबर 1950। भारत में जब भी कोई संकट की घड़ी आती है तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण किया जाता है, सच्चे